Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the general society members. The website has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is society disputes, problems. सोसाइटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनके कुछ सिंपल सॉल्यूशंस एंड फंड रेजिंग वगैरह। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर जयशंकर नटराजन। He is a social citizen and highly experienced in various aspects of life and also society matters. He was earlier working with the media industry, and now he is with the pharma industry as a national sales manager. Mr. Natarajan is a person who simply cannot tolerate injustice. On behalf of all our friends here, we invite him to share his experiences relating to today's topic. Mr. Jayashankar Natarajan, sir, we respectfully invite you to share your knowledge and experiences with our friends over here. Please take over and proceed. Thanks. And over to you, Mr. Jayashankar, please. Mr. Jayashankar. Am I audible, sir? Yes, sir. Now you are very much audible. Please go ahead. Switch on your video. Yes, I have done it. Yeah, and please go ahead, sir. Good evening, everybody present in the forum. I thank everybody for being a participant here and trying to share the experiences of each and every one. Hemant sir has been very kind to organize such a forum where we all get on the same page and we all develop our own ideas. As sir has said, that I'm with the pharma industry. And today I see in the pharma industry also as to what has been happening. So therefore, today's topic is slightly unusual. However, it concerns the society matters and how we can stand united and take our society to high standards. We have been continuously harping on the fact that the managing committee does this person does that person does this. So what could be our contribution to see that everybody comes onto the same page? The first thing we'll have to do is probably form a cultural group, a welfare group. It might be of the tenant or it might be of the members of the society.
A tenant is a caretaker of the society, of the members' property. So therefore, if he is also involved into the day-to-day activities, because he's also using all the amenities, Mr. and if you Jaishankar, make him feel wanted, he will definitely try and come out of the way. See, how can you get a person on the same page? Mr. You can get a Jaishankar, person on the Mr. same page Jaishankar, by. excuse me, Mr. Jaishankar. I'll request you Yes, sir. to I'll request you to lecture majorly in Hindi language and some part in English, ठीक है Marathi, सर, but ठीक है, कोई majorly in दिक्कत English. नहीं, हमारे कोई सारे दिक्कत नहीं, दोस्तों हमें को कोई भी आसानी भाषा से चलेगी। आसानी से समझ में आ जाएगा सर। थैंक यू सर, प्लीज प्रोसीड। मैं ये सोच रहा हूं कि हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं इसने ऐसे किया उसने वैसे किया। मैं दूसरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रहा हूं। जैसे कोई चीज जहां पे काम नहीं होती है, हर आदमी को क्या चाहिए? हर आदमी को ये चीज चाहिए की तुम्ही आम्हाला पाहिजे, तुम्ही आमचा माणूस आहे असं बोललं तर माणूसला असं वाटतं की हा यार, हा माणूस माझा इज्जत करतो, माझा रिस्पेक्ट करतोय, तर मी याच्या बरोबर बोलायचं जरूरी आहे। और ये भी बात होती है कि अगर आप किसी को भी बोले कि आप उसको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे दी अपनी ईगो को ब्रश करके, वो आदमी आपके साथ हर चीज में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए हम आपसे सोचे हैं कि ये झगड़ के और ये सब एडवोकेट के पास मैं अपॉलॉजी मांगता हूं जो भी यहाँ पे फोरम में है। मैं ये नहीं बोलता कि लिटिगेशन में मत जाओ, लीगैलिटी में मत जाओ, मगर ये बात मैं बोलना चाहता हूं जहां तक होवे वहां तक अपनी मन की शांति बहलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम जाते हैं काम पे, हम आते हैं, मगर हमारे को तो ये है कि हमारी ऑफिस की टेंशन रहती है, ठीक है। हम जब घर पे आते हैं, अगर घर शांत है तो हम जी जान लगा के वो ऑफिस में या वो हमारी बिजनेस में हम काम कर सकते हैं। जब हमारी घर ही खुद ही डिस्टर्ब्ड है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी माइंड पूरी तरह उसी में ही इवॉल्व होगी, इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा हूं कि एक और सोसाइटी के मैटर्स जो चलती है, ठीक है, जो मैनेजिंग कमेटी हम लोग ने खुद ने ही इलेक्ट किया है, ठीक है, उनको बोलने से अच्छा हम एक सोसाइटी के मेंबर रहते हुए, हर सोसाइटी में यह होता है कि एक्टिव मेंबर्स होता है, नॉन एक्टिव मेंबर्स होता है। नॉन एक्टिव मेंबर्स को एक्टिव मेंबर्स कैसे बनाया जाए, क्या करेंगे तो वो लोग सब कुछ आएंगे। तो इसमें मैंने कोई चीज मेरे दिमाग में जितनी आई, मैंने सोचा कि अगर ये कोशिश करें तो शायद हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कर पाएंगे। ये मैंने सोचा हूं। पहली बात तो मैं ये बोलता हूं कि सब लोगों को कैसे एक ही पेज पे लेके आना चाहिए, सब लोगों को कैसे सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड, इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है जो बोलते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हमको स्टैंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा? पब्लिक को लेके आना एक और इसमें पहली महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमको ये बताना है कि आपकी जरूरत हमें है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, ये हमको पहले बताना है। ये कैसे कर सकते हो? पहली बात जो है, आपकी सोसाइटी की जितने भी लोग जो है उनमें से एक कल्चरल ग्रुप फॉर्म करो। सब लोग इक्वल है, उसमें कोई चेयरमैन ना होता, ना कोई सेक्रेटरी होता, उसमें ना कोई ट्रेजरर होता है, ठीक है। सब लोग एक साथ में मिलो, ठीक है, और एक शाम में आप सब लोग बैठो और सिर्फ अपनी अपनी गप्पे मारो और सिर्फ एक कप चाय पियो, एक ठंडा पानी पियो, हम सब साथ में मिलेंगे। ये कोशिश करके अगर आप ये प्लेटफॉर्म में लेके आओगे तो आगे और चीजें बढ़ेगी। क्योंकि दूसरी बात आप ये कर सकते हो, आपके सोसाइटी में बच्चे हैं, एडल्ट हैं, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, इन सब के बर्थडेज, इन सब की एनिवर्सरीज, सीनियर सिटीजन्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सबकी एनिवर्सरी लेके अगर आपने आपकी सोसाइटी की एक लेटर हेड पे एक ग्रीटिंग जैसा बना के उनके घर में लेके जाके एक फूल के साथ देंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा।
अगर आप लोगों की बर्थडे है और मैं आया आपके पास और सर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जो हम व्हाट्सएप में विशेष बहुत जन को भेजते हैं, अगर ये हमने किए तो वो आदमी को कितना अच्छा लग जाएगा। आप खुद लोग ही सोचिए कि ये जो मैं बोल रहा हूं, और इसमें या तो जो सोसाइटी अफोर्डेबल है वो एक ग्रीटिंग कार्ड ले सकती है, अपनी सोसाइटी की लोगो एम्बोस कर सकती है और उन लोगों के बीच में दे सकती है। एक छोटा सा बच्चा है, समझो कि 8 साल का या 7 साल का, वो बच्चे की बर्थडे पे हम लोग उनको नीचे बुलाते हैं और उनको देते हैं और उनको एक फूल देते हैं या एक कैडबरीज की, एक एक्लेयर्स की चॉकलेट देते हैं। कम से कम देना तो बहुत कुछ दे सकते हैं, उसकी जो रोज की जरूरी होती है पेन, उसकी जो जरूरी होती है पेपर, ये दे सकते हो। और बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको बुला के भैया आप आइए, आप सब लोग आपको अभिनंदन देना चाहते हैं करके अगर आप उन लोगों को बुलाएंगे, वो बुजुर्ग लोग जो आज काफी जनों के माँ बाप के साथ बच्चे नहीं रहते, ये मैंने भी देख चुका। मैं जाता हूं हर शनिवार एक ओल्ड एज होम में और वो लोग वेट करते हैं ये कब आएगा, बस जाके उनसे मिलना है, उनको सिर्फ एक फूल देना है या उनको एक चॉकलेट देना है या एक मिठाई की देना है या एक एप्पल देना है। कितनी खुशी आपके दिल में आएगी ये बात देखिए। बिकॉज अगेन इंग्लिश में और एक प्रोवर्ब है जिसको बोलते हैं व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। अगर जो जैसे गांधी जी बोलते हैं एक कान लाफा मारा दूसरी गाल दिखा दीजिए, उसमें भी मारेगा, पीठ दिखा दीजिए, शर्म के मारे निकल जाएगा। जैसे हम ये 3 लेटर वर्ड जो है ईगो, वो हमको बर्बाद कर दे रही है। हम क्या लेके आए, हम क्या लेके जाने वाले हैं। यहां पे बैठ के आपको ये नहीं लगता कि अगर एक इंसान इसकी एनिवर्सरी, इसके बर्थडे में जाके पूछे, मिले, बोले आपकी जरूरी है, आप हैं तो हम लोग हैं, तो कितना अच्छा लग जाएगा। वो आदमी आप लोगों को कभी भूल पाएगा? नहीं भूलेगा। दूसरी एक होती है, हर सोसाइटी में इंसान बीमार रहता है, कोई बीमारी होती है, कोई किसी की तबीयत खराब होती है, आपको पता चला तो आपने उनके घर पे जाके एक गेट वेल कार्ड दी। ये कल्चरल ग्रुप में 4-5 जन गए जिनके पास टाइम तो ऐसे तो टाइम नहीं है बोलते हैं, ये शब्द से तो मैं बहुत ही नफरत करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रोनाल्ड रीगन को भी 24 घंटे था, बिडेन को भी 24 घंटा है, पुतिन को भी 24 घंटा है, मोदी जी को भी 24 घंटा है, मुझे भी 24 घंटा है और रास्ते का भिखारी को भी 24 घंटा है। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर ये करेंगे तो उनके बुजुर्ग लोगों को जिनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको जाके आपने मिले, आपने उनको एक गेट वेल सून कार्ड दे दिए, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। अरे कल मुझे कोई तकलीफ है तो मैं इसको बोल सकता हूं, मैं इन लोगों को बोल सकता हूं। हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाती है, पहला कौन आता है? मेरे रिश्तेदार नहीं आते, आते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस। तो उन लोगों के साथ बना के रखना कि ये एक तरीका मैंने सोचा हूं, जो सब लोग आखिर में बोलेंगे नहीं हम ऐसे ही करेंगे, हम अच्छी तरह से रहेंगे। आज मैं आप सवेरे आपकी शक्ल मुझे देखना है, मेरी शक्ल आपको देखना है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ये क्यों करें? मैं तीसरी पॉइंट ये सोच रहा हूं कि हमारी सोसाइटी में काफी सीनियर सिटीजन रहेंगे और सुपर सीनियर सिटीजन भी रहेंगे। भाई एक आध दिन उनके पास जाइए, उनको पूछिए सब कुछ कुशल मंगल है, तुम्हाला काय पाहिजे, काय आणून काय, सगळं है काय, ओके, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाईन, मी नाही म्हणतो, सगळं ऑनलाईन भेटतात। मग तुम्ही जाऊन त्याला विचारलं अंकल पानी वानी है, वाटर प्रॉब्लम इज लॉट नाउ इन द समर सीजन, अंकल पानी वानी से व्यवस्थित है काय, अंकल काय आणून देऊ काय, अंकल आंटी काय तुम्हाला काय पाहिजे काय, हाउ मच दे विल फील इवन इफ देयर सन्स आर अब्रॉड एंड दे आर स्टेइंग अलोन हियर, वो लोग उनके बच्चे परदेश है और वो लोग इधर है, तो उनको लगता है मैं मेरा बेटा उधर है तो क्या हुआ, इधर भी तो मेरे बेटे हैं। वो आशीर्वाद अपने को बहुत आगे जिंदगी में ले जाएगा। और जैसे ही, अब मैं चौथी पॉइंट पे आता हूं,
जो चिल्ड्रन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी हम डेवलपमेंट क्या करते हैं। आज मैं शादीशुदा नहीं हूं, मगर मैं जब बिल्डिंग के अंदर आता हूं, बच्चे लोग रहते हैं, मैं बच्चे लोगों के साथ बात करता हूं 2 मिनट, कैसा था आपका, क्या हुआ। कितने हम माँ बाप हमारे बच्चों के साथ टाइम देते हैं। हमको सिर्फ हमारी ऑफिस आती है, हम घर आते हैं, हम टीवी देखते हैं, चले जाते हैं। आज हमारी सोसाइटी में, मैं बड़ी फक्र के साथ कह रहा हूं कि हमारी सोसाइटी में मैं कुछ भी प्रॉब्लम बच्चे लोगों को जो हो जाता है, बच्चे लोग शंकर अंकल के पास चले जाएंगे, शंकर अंकल अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ सोल्यूशन एंड एवरीथिंग हैज गॉट अ प्राइस एट द एंड ऑफ द डे। हम जो है क्षण दिन के लिए है, तो उस क्षण दिन में अब जो चल रहा है, देखो जन्म लेना सही है और ऊपर जाना भी सही है, बीच में जो है वो एक नाटक है। हम क्या लेके आए थे, हम क्या लेके जाएंगे, ये सब अगर अच्छी चीजें करेंगे तो आपको क्या जरूरी पड़ेगी। वो मैनेजिंग कमेटी वाला जो आपके साथ जो अन्याय करता है, वो शर्म के मारे उतर जाएगा, यार ये लोग ऐसे कर रहे हैं, यार हम लोग क्यों ऐसे करना चाहिए। वो भी आपके साथ आएगा, वो भी आपको बोलेगा नहीं अपन ऐसे करेंगे, अपन ऐसे करेंगे, वो भी इन्वॉल्व होएगा, वो भी अपना एक आदमी बनेगा। उसकी लास्ट लेक्चर मेरी थी हाई हैंडेड बिहेवियर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। उसको कैसे तोड़ने की कैसी तरीका है, उसकी हाई हैंडेडनेस को निकालने की तरीके ढूंढ रहा हूं कि वो भी समझे नहीं, हम सबके साथ हम जिए, सबके साथ हम अच्छी तरह रहे। हम बन गए तो हम कोई सेठ नहीं है। आज आपकी कंपनी में आपका बॉस होगा, आपका चेयरमैन होगा, वो बोलेगा, वो मालिक है, वो अगर आपको उल्टा बोलेगा आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। वहां तक क्यों जाए, हमारे घर में जो कामवाली आती है उसको प्यार से बोलो, 10 गुना काम करेगी। अगर आपको उसके साथ रुबा भी करोगे तो क्या करेगी, दूसरे दिन छोड़ के चली जाएगी, 10 जगह आपको आपके बारे में बाहर जाके 10 जगह में बताएगी। तो प्यार से जो आप जीत सकते हैं वो लाठी से नहीं जीत सकते हैं। तो ये अगर प्यार आपने किए, बच्चों के साथ जो बैठे, बच्चों को एक ग्रुप बनाए, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ले लीजिए, लड़के लोग इतने, लड़की लोग इतने, कोई एक सब्जेक्ट दीजिए उनको। खास करके ज्यादातर करके ये भी नहीं, ये रोज गुड मॉर्निंग मैसेजेस इतने आते हैं, भाई इस चीज का मतलब क्या है। उनको एक डिबेट कंपटीशन लगा दीजिए, कोई ना कोई अपने इसमें से, एवरीबडी इज वेल ऑफ, 50 रुपए की एक पेन लेके दे देंगे और कंपटीशन लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं पेडेस्ट्रियंस आर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। जो रास्ते में वॉकिंग करते हैं वही कारण है एक्सीडेंट का। ये लाइन मेरे दिमाग में अभी इसलिए आया है क्योंकि आज सवेरे जब मैं वॉकिंग कर रहा था, गाड़ी वाले ने मुझे उड़ा के गया है और मुझे मार लगा है। तो हमको कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो लोग जानेंगे, मोबाइल रख के लोग बात करते हैं, मोबाइल की यूटिलिटी क्या है। हम आज देखते हैं कि बच्चों को इस लाइंस पे ऐसे बात कराने पे, अदर देन देयर एकेडमिक लाइफ, जो सवेरे जाना, स्कूल जाना आना, ट्यूशन जाना आना, फिर बाद में माँ बाप चिल्लाएंगे करके बच्चा बैठ के पढ़ता है। सो ऑल वर्क एंड नो फन मेक्स जैक अ डल बॉय। तो उनके साथ थोड़ी देर पे एक संडे का दिन होगा, एक छुट्टी का दिन होगा। ऐसे भी तो अपने भारत में इतने त्योहार आते हैं कि महीने में तो एक आध छुट्टी तो मिल ही जाता है। बस उनके साथ बैठे, उनको बोले चलो आप लोग ऐसे बात करो, देन यू विल इंप्रूव देयर वोकैबुलरी, यू विल इंप्रूव देयर नॉलेज। सी, इंफॉर्मेशन आना बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन मिलना बहुत कुछ है। टू ट्रांसफॉर्म दैट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, what is knowledge? Knowledge of the self is nothing but the devotional spirit. And what is further knowledge into? Knowledge is translated into bhakti. And what is bhakti? It is your devotion. So ultimately, if you can try these things, I am not saying that everybody will be successful out of what the attempt which we make. Even if there is 1% of change in a particular person, you have achieved your goal.
because to climb the first step is a problem. Beyond that, there are 99 steps. That steps are very easy to climb. पहले कदम रखना सबसे बड़ी मुश्किल है. तो अगर ये आपने ट्रांसलेट किए उसको कि पहले कदम में चले जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप वॉइस कीजिए, बट बी वेरी फर्म, बी वेरी पोलाइट. जैसे मैंने कभी कभी मैं हेमंत जी सर को भी मैं बोल देता हूं, सर ये क्या चल रहा है सर ग्रुप में, बस सर इसको बंद कीजिए. काफी रातों में मैं लिखता हूं कि काम डाउन, कूल डाउन. तो आई वर्सेस यू करके क्या मिलने वाला है? तो इसलिए हमको ये करना है कि भैया प्यार से कैसे निपटाए. ये स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए अडॉप्ट किया, ये स्ट्रैटेजी मैंने सोच विचार करके हेमंत जी को रिक्वेस्ट किया मैंने कि सर मुझे इस लाइंस पे बात करने दो. क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताता हूं, फार्मा कंपनियां थे जो प्राइस ऑफ क्रोसिन जो मिलता था पैरासिटामोल 30 रुपया एक स्ट्रिप, बाद में आई जेनरिक इंडस्ट्री, उसमें हुआ 18 रुपया एक स्ट्रिप. अब आई है जन औषधि और सर्व औषधि, दैट सेम पैरासिटामोल 7 रुपया एक पत्ता है. तो आप एक बात समझिए, वो 30 रुपए का पत्ता जो है वो 7 रुपए में कैसे आया? वो इंडस्ट्री के क्षण लोग ऐसी संघर्ष किए हैं, नहीं हमको पेशेंट लोगों को मदद करना है, हमको इन लोग को साथ देना है. इसलिए तो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने ये निकाला था, और उसकी से कितने दुकानें खुल गई हैं. क्योंकि मैं वो फील्ड में हूं, मैं खुद ही देख रहा हूं. दवाइयां नहीं मिलते हुए, लोगों को दवाइयां ना मिलते हुए कितने जन मरते हैं. आज सबको सब दवाइयां मिल रही है. तो आज वो लाइन्स को देख के जन औषधि आई तो लोग ने बोले कि बंद हो जाएगा. आज वो लाइन लेके 50 कंपनियां वापस वही लाइनों पे शुरू हो रहे हैं. तो अगर वो पहला कदम अगर जन औषधि ने नहीं लगाता था तो ये 50 आदमी फॉलो नहीं करते थे. वैसे ही अगर हमको ये सब चीज करना बहुत कठिन है, मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत कठिन है, मगर अगर आप करके देखोगे आपकी मन की शांति कितनी आएगी आपको पता चल जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे आप आराम से अपनी चादर लेके सोओगे, आपको दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा वो सेक्रेटरी क्या कर रहा है, वो चेयरमैन क्या कर रहा है. इसलिए अगर ऐसे करोगे, क्योंकि मैं आपको और एक सवाल भी करना चाहता हूं, जब यही अगर मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा ससुर है, भले मैं शादीशुदा नहीं हूं, अगर वो सेक्रेटरी है उधर, मैं जाके लड़ूंगा? मेरे को उसके साथ रिलेशन रखना है. क्यों नहीं समझते हो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट आदमी है अपना? उससे लड़ने से अच्छा अगर आप ऐसे करके जाते हो, वो आपकी लाइंस पे आ जाएगा. मगर हमारे को क्या है, आज वो मेरा ससुर है, आज मेरा वो रिश्तेदार है, आज मेरा वो चाचा है, तो मैं क्या करूंगा भाई, उसको करने दे. आखिर में वो पैसे मेरे जो जा रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है, मेरे घर पे आएगा. कोई लोग क्या करेंगे, भैया 100 रुपया है ना, कौन माता कोड करेगा यार, 200 रुपया ले चले जा. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आज मेरे लिए, मी माई सेल्फ, आई को बोलोगे तो इलनेस आएगा, डब्ल्यू डालोगे तो वेलनेस आएगा. तो आप लोग अभी ये बात सोचिए जो मैं इतनी बोल रहा हूं कि हमको वेलनेस चाहिए कि इलनेस चाहिए. हमको बैड ब्रेथ लेके हमको क्या फायदा होने वाला है? आप एक बात समझिए, ये वो बुजुर्ग आदमी के पास चले गए आप और उसको पूछिए, अंकल आपको सब कुछ ठीक ठाक है? कितना खुश हो जाएगा. स्पोर्ट्स की कंपटीशन कीजिए, आपकी सोसाइटी के अंदर से अगर कोई सचिन तेंदुलकर बना या मोहम्मद शमी बना या विराट कोहली बना, आप लोगों को कैसे लगेगा? या विश्वनाथन आनंद बना, आपको कैसे लगेगा? अरे वो मेरे सोसाइटी में रहता है, प्राउड के साथ बोलते हैं ना. तो उसको वो लेवल तक लेके आने के लिए हम कितना डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को कौन सा अच्छा संस्कार दे सकते हैं. हम क्या करते हैं, आज पैदा हुआ बच्चे को एक मोबाइल दे देते हैं, भाई हमारा काम हमको करना है, तुम वो मोबाइल देखो, और 10 साल की उम्र में उसको चश्मा लग जाता है.
क्यों ना एक स्क्रैबल लेके देवे। सोसाइटी में हम इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, ये कल्चरल कमेटी फॉर्म करके अगर आप 100 रुपया डालें, उसको आपने इन्वेस्ट भी किए, तो आपके जो गणपति त्योहार के टाइम पे आप चले जाते हो, आपको डांडिया करना है तो चले जाते हो, लोगों को बोलते हो पर हेड 500 रुपया दो, उसमें कूपन दूंगा खाने के लिए। इससे अच्छा अगर महीने की 100 रुपया भी आपने ले लिए, 200 रुपया लिए, वॉट एवर इट इज, आप सबको आइडिया दो। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जबरदस्ती उसके ऊपर इंपोज करो, आप उसको आइडिया दो। सर हम ऐसे करेंगे तो हमारी सोसाइटी में ये त्योहार में सर हम ऐसे कर सकते हैं ना सर, हम सब लोगों को एंटरटेनमेंट। आखिर में सोसाइटी में गणपति त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों, या डांडिया क्यों मनाया जाता है? वो बच्चों को और अपनी फैमिली को जो एक आध दिन कम से कम मिल जाए, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार। एक हमारी सोसाइटी में काफी डिस्प्यूट्स थे, एक दिन हमने सोचा कि यार ये डिस्प्यूट को बंद करने के लिए एक काम करते हैं यार। तो बोले क्या करेंगे? तो हमने बोला भैया हम किम बीच चलते हैं अलीबाग में, जिन जिन को आना है उन लोग आओ, इतनी कॉस्टिंग हो रही है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, टी है, डिनर है, बस का खर्चा इतना टोटल आ रहा है। नॉट इवन अ सिंगल फ्लैट सेड नो। मुझे 3 बस लेके जाना पड़ा, और उधर जो देखते हुए इतनी आनंद मिली, जो बुजुर्गों जो खेल रहे हैं, जो अपने बैठ के आराम ले रहे हैं बीच में, जो बच्चे पानी में खेल रहे हैं, जो लेडीज लोग अपने साथ में हैं, जो आदमी लोग अपने इसमें घूम रहे हैं, कितना एक अपनापन हो गया था उधर। वो आज भी मेरे आंखों के सामने खड़ा है। मैं भी टूर करता हूं, मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन टूर पर रहता हूं, मगर जब मैं आया, जमीन उल्टा आसमान नीचे। शुक्रवार के दिन मेरे को मुंबई रहना है, सोमवार के दिन मैं निकल जाऊंगा, शुक्रवार के दिन मेरे को आना है, मेरे को मेरी फैमिली को देखना है, मेरे मदर को देखना है, मेरे को घर की नीड्स को पूरी करनी है। हम क्यों काम कर रहे हैं सर? अगर ये ही 4 जन के साथ अपन मिलके ये चीज की, तो आप हमें बताइए कितनी आगे बढ़ सकते हैं, कितना आनंद आएगा। आप खुद ही लोग बाहर जाओगे और बोलोगे कि यार हमारी सोसाइटी में तो यार जाने को मन आ जाता है यार, जैसे हर आदमी तरसता है अपने घर वापस आने का। तो आपको ये होगा मैं कब कितनी जल्दी पहुंचूं, मैं घर पे कितनी जल्दी ये करूं, मैं बिल्डिंग में जाके अपने लोगों के साथ कितनी जल्दी मिलूं। ये उत्साह क्रिएट कीजिए, ये मेरी विनंती है। और आप अगर ये चीज कर सकते हो तो उसमें आपकी सक्सेस रेट जो है, जैसे मैंने बोला, ये बहुत आसान काम नहीं है। सब लोगों को एक ही इसमें लेके आना बहुत कठिन है। हमारे घर में हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे मदर है, हमारे फादर है, इन सबको एक जगह के इसमें लेके आना मुश्किल है। मगर कोई त्योहार होता है तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो हर दिन को त्योहार मानो। मेरा कहने का बात ये है। खैर मेरी टाइम तो जा ही रही है, ये एक था। और मैं दूसरी एक बात मैं सोच रहा था, ये सबको लेके आने के लिए क्या तरीका है? हमको एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो सीनियर सिटीजन है या कुछ भी है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस पर्सन को हम ये कर सकते हैं कि भाई उसको एक मॉरल अथॉरिटी जैसे बना सकते हैं कि वो आदमी बोले तो ही इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे पंडित बोल देता है मंदिर में, या मस्जिद में मौलाना बोल देता है, या चर्च में फादर बोल देता है, तो हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ मानते हैं। क्यों? हमारे बीच में ही ना एक आदमी जो समझा के बोले, ये नहीं कि ऐसी करना है, वो अगर समझाएगा, देखो आप लोग ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा। जो कौन कर सकता है? जो मैच्योर्ड सीनियर पर्सन। ये एक बच्चा नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता। हमारे जो सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है, उनके पास जाए, अंकल जी ये सब तकलीफ है, अंकल जी इसका सुधार के लिए आप जरा हमें साथ दीजिए। ही विल विलफुली कम, ही माइट नॉट बी वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मगर वो विलफुली आएगा, बोलेगा अच्छा बन रहा है, चलो हम काम करते हैं, क्योंकि मैंने ये कोशिश किया और मुझे सक्सेस मिला।
और मैं वही शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ जो मेरी एक्सपीरियंस है। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं मेरी दूसरी सब्जेक्ट पे जाता हूं कि रेवेन्यू कैसे हमारी सोसाइटी के लिए हम जनरेट कर सकते हैं, और इसके बाद हम जरूर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सर पूछेंगे, आप लोग पूछ सकते हो, जब भी मैं आंसर करूंगा। पहले मुझे बोल देने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को जरूर हर चीज का जो लॉजिकल आंसर्स जो मेरे दिमाग में है मैं आपको दे सकता हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि रेवेन्यू, ठीक है। अपनी जो नोटिस बोर्ड जो है उसमें हम क्या लिखते हैं? पार्किंग इसके लिए इतना, इसका जो है इसका ड्यूज है, इसका ये है, इतनी बड़ी नोटिस बोर्ड लगा देंगे उधर और लगाएंगे ये सब, आधा नोटिस बोर्ड खाली रहता है। Why can't you write articles on health and fitness and take advertisements of strip? जैसे आपकी काल निर्णय इसमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 पेज की बनाए तो आप उसमें 8 स्ट्रिप छाप सकते हो। अगर 8 स्ट्रिप का एक स्ट्रिप का आप 2000 रुपए लिए, आप फोर्टनाइटली बनाए 2000 रुपए लिए, ठीक है, 16,000 रुपया फोर्टनाइट बनता है, महीने का 32,000 बन जाता है। आपका एक सेट का वॉचमैन का चार्ज निकल जाता है। कोई कोई सोसाइटी में महीने का वॉचमैन का चार्ज ही निकल जाता है। ये एक बना सकते हो। वहां पे उसमें जो नॉलेज, ये इस प्रकार के दो सोसाइटी में हमको कैसे रहना है, थोड़ी लॉ के बारे में लिखो। एक ही जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को मोनोटोनस करके लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं, काफी जन, मैं हेल्थ ग्रुप हेमंत जी ने मुझे इंक्लूड किए हैं, मैं उसमें हूं। काफी जन बोलते हैं मेरी डायबिटीज इतनी है, मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। सिंपल रेमेडी फॉर डायबिटीज, करेला को काटो, लूकवार्म वाटर में डालो, अपनी पैर को उसके अंदर वो लूकवार्म वाटर में डुबा के रखो। 10 मिनट के बाद आपके जबान पे एक ब्लैक कलर का एक बिटर टिंच आएगा, पैर निकाल दो, 10 दिन करो। आप HbA1c पहले करो, उसके बाद HbA1c इसके बाद करो। आपको फर्क पड़ जाएगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी डायबिटीज कैसी उड़ गई है। अब लोग ज्यादातर बोलते हैं मेरी पेट खराब है, मेरा पेट बहुत तकलीफ देते हैं। व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर इट? आपके घर के अंदर जो मेथी जो है, सवेरे उठो, मेथी का पाउडर लो, उसको पियो, ऐसे लिखो। देन यू राइट अबाउट योर सोसाइटी मैटर्स। सोसाइटी का लॉज जो है, जो हम ये फोरम में बैठे हैं, उसमें डूज एंड डोंट्स जैसे भी आता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये लिखिए। एजुकेटिव इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए देने के लिए, नॉलेज इज वास्ट and nobody can acquire it. There are different fields of knowledge. It is not only pharma and law. There are different ways. किसी को कोई चीज में इंटरेस्ट रहेगा, आप डालिए। Then on the day of Ganpati or this one, those 11 days when you keep, get out a souvenir, get out an advertisement. How are the publications functioning? ये विज्ञापन के बगैर पब्लिकेशन की आमदनी क्या है? एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आपको 5 रुपए में, 7 रुपए में मिलता है। उसको निकालने के लिए मेरे को 30 रुपया लगता है। तो मैं 30 रुपया कैसे निकालता हूं? यही विज्ञापन से निकालता हूं, क्योंकि सर ने बताया था कि मैं मीडिया में था, तो इस चीज को मैं जानता हूं। ये विज्ञापन से जो मैं निकालता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 स्क्वायर फीट इज कॉस्टलियर देन अ स्क्वायर फीट इन नरीमन पॉइंट। आपका जो फुल पेज एड आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका कॉस्ट है 2 करोड़। सो व्हाई कांट यू डू दिस? सेकेंड थिंग, आप, ये एक तरीका हो गया। आप एक कॉर्पोरेट बॉडी को पकड़ो और आप इनको बोलो कि भैया हमारी जो गार्डन जो है, आपके ये लगाइए, नियॉन साइंस लगाइए। अच्छा, ये विज्ञापन आप मुझे पूछोगे, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप पूछोगे विज्ञापन कैसे लेके आएंगे? आपके एरिया में होटल वाले काफी लोग आके देते हैं, खाना डिलीवरी करते हैं। आप उनको बोलेंगे हम आपसे डिलीवरी करते हैं, ये 1 महीना आप लो, 1 महीना आप लो, 1 महीना आप लो।
मेहनत है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मंडले हैं जो गणपति के टाइम पे चंदा के लिए जाते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपका वेंडर खुद है, आपके बिल्डिंग में टावर लगाते हैं, आपके घर में ये करते हैं, तो इस टाइम पे हमारी क्या है? यू नीड नॉट एडवर्टाइज। एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप इतना तो बोल सकते हैं कि भाई हम इधर अवेलेबल है। आपके न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट डाल के आती है, वो न्यूज़पेपर का पैम्पलेट का जो कीमत है पैम्पलेट को फेंक देते हो आप। ये तो कम से कम आने जाने वाला मेहमान जो भी आता है उसका आईबॉल्स तो गार्नर होते हैं। और इस वजह से आपकी सोसाइटी की रेवेन्यू बढ़ सकती है। और जब आप लिख के दे रहे हो, ठीक है, और 4-5 सोसाइटी में भी आपने आपकी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपने अगर उधर भी बोर्ड पे लगाने गए तो उसके तो सोने पे सुहागा हो गया एरिया में। क्यों नहीं करेगा? मगर हमारे को ये चीज नहीं आती है कि भैया हमने काम किया, हमने घर आया, हम कैसे, अगर वो पैसा आपके पास आ जाता है तो आप अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को, जो सोसाइटी की पैसा नहीं ले सकते हो, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, ये जो पैसा आ रहा है। कल बिल्डिंग रिपेयर करनी है, भाई कल्चरल कमेटी बोलेगी भैया इतना पैसे हमारे पास है, हम भी तो आपको हम जो हमारी कंट्रीब्यूशन देना हम दे रहे हैं, इसके अलावा भी हम ये देंगे। कितना एक एकतापन हो जाता है, कितना आप साथ में लेके, आपकी बर्डन कितनी कम हो सकती है। कोई हो सकता है कि आज मुझे बोलेंगे भैया 2 लाख रुपया दे दो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं 5 लाख रुपया कमाने वाला हूं। मगर वो सोसाइटी में ऐसे भी आदमी होंगे ये कोविड के बाद जिनके पास नौकरी चली गई है, उनको वो लोग क्या करेंगे? हम किसी के बारे में हम सोचते हैं? हम नहीं सोचते। जब हम किसी के बारे में सोचेंगे तो दुनिया हमारी बारे में सोचेगी। बस ये करना है, वो करना है। देखिए, अगर एक उंगली मैंने आपके ऊपर दिखाया तो 3 उंगली और अक्का हाथ मेरे पे दिखा रहा है, तो मैं कितना साफ हूं। अगर ये सब अगर अच्छी तरह करने गए तो आप समझिए कितना फायदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी आप ये कर सकते हो, आप होर्डिंग्स लगवा सकते हो आपकी सोसाइटी में। आप नवी मुंबई में कहीं भी बैंड्रा में चले जाओ, एक होर्डिंग का कीमत क्या है? एक होर्डिंग का कीमत क्या है जो हम जाके देखते हैं? भैया निकॉन कैमरा का लगाया है, वोडाफोन का लगाया है, हम देख रहे हैं उसकी कीमत क्या है। वो आपकी सोसाइटी में लग जाएगा, साल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कितने सोसाइटी ऐसे नहीं है, छोटे मोटे सोसाइटी, जहां पे होर्डिंग्स लगा है, क्योंकि होर्डिंग बिजनेस में भी मैं था और उसमें मैं बोल रहा हूं कि गोरेगांव, बैंड्रा, अंधेरी, बिल्डिंग पे जो 4 माले की बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ा किए। इधर तो हम लोगों के पास टावरें हैं, क्यों नहीं कर सकते? आज जो बात आती है मोबाइल टावर लगाया, हमने मोबाइल टावर लगाया, भाई वो उसका रूल क्या है, कानून क्या बोलता है उसका? 50% आप सब लोग में बांटो और 50% बिल्डिंग की बेनिफिट के लिए यूज करो। मगर हम तो नहीं करते हैं ना वो। और उसकी वजह से उसका जो रेस, उसका जो कैडमोनियम सेल्स जो वो जनरेट करता है, आज आप बहुत सारे जगह में सुनते रहेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्ट्रोक आ गया। उसका कारण क्या है? इट इज दिस मोबाइल टावर। तो इससे अच्छा आप ऐसे होर्डिंग जैसे लगाओ जिसमें आपको मंथली रेंट मिल सकता है ₹1,00,000। 20x20 का आप लगाओगे, आपका मंथली रेंट मिलेगा ₹1,00,000। आपको खाली एक होर्डिंग इरेक्ट करना है, बस आते रहेंगे। हर सोसाइटी में कोई ना कोई रिसोर्सफुल आदमी होगा ही, हर सोसाइटी में। हम समझते हैं कि देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूं कि हमें हक है अपने आप को होशियार समझना, मगर सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना। उसके पास भी कोई टैलेंट है, हम बड़े हैं, ये नहीं करो, सबको साथ में ले चलो। तो इसमें यह दूसरी वे है।
तीसरा जो है, जो आपकी गार्डन जो है, ठीक है, वो गार्डन के अंदर आप ये यहां तक कर सकते हो कि वो गार्डन में आप एक कॉर्पोरेट बॉडी को बुला के, इंडियन ऑयल जैसे है, ये लोग आपकी गार्डन को मेंटेन करें, पौधे लगाओ, ग्रीनरी। आपकी ये कॉन्क्रीट जंगल से जब ग्रीनरी हो जाती है तो आपको अपने आप ठंडक हो जाती है। आज हम बोल रहे हैं, पहले जमाने में कभी बिल्डिंग में हमने क्रैक वैक नहीं सुना है। हम चिंबूर में भी रहते थे, हमने कभी नहीं सुना है। बट आज हम क्रैक्स की बात क्यों सुन रहे हैं? बिल्डिंग में लीकेज है, ये क्यों सुन रहे हैं? It is not only the quality of the product is low, it is also the vibrations of what you have got. आप ये सब कोशिश कीजिए, आप खुद ही देखोगे कि वो पूरा क्रैक्स बंद हो जाएगा अपने आप। क्या फायदा है एक लिटिगेशन में आके? हाँ, यहाँ पे काफी एडवोकेट्स रहेंगे, मैं उनकी धंधे के ऊपर मैं ये नहीं कर रहा हूं, मगर यही बात बोल रहा हूं कि प्यार से जो हो सकता है उसको प्यार से ही निपटाओ। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, मैंने उसको बोला जाके लीगल केस फाइट कर। द सेम पर्सन इज टॉकिंग दिस लैंग्वेज, जाके फाइट करो। क्या फायदा? ना आप खुश है ना वो खुश है। अब रिसेंटली मैं एक एसजीएम में एक सोसाइटी के अंदर मेरे एक फ्रेंड को मिलने गया था। ये सब चीज मेरे को, मैं हेमंत सर को मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि ये एक लाइन में मेरे दिमाग में खटकने लगा। मैं एक सोसाइटी के अंदर चल पड़ा। वो सोसाइटी में कोई लीगल केस था, मेरा फ्रेंड के घर में जा रहा था। मेरे फ्रेंड के फादर मेंबर है तो नीचे थे, नमस्ते अंकल बोल के मैं चले गया। वहां पे जब मैं लिफ्ट के इधर जा रहा था, आई कुड हियर द सेक्रेटरी ऑफ दैट बिल्डिंग टेलिंग, इवन वी कैन से वी हैव वन द केस। वो आदमी ने सीधा डिक्री निकाला, बोला यू मीन टू से यू हैव वन द केस, व्हाई आर यू फूलिंग पीपल? दैट पर्सन हैड टू फॉल फ्लैट ऑन हिज फेस। सो व्हाई गेट इनटू इट? व्हाई डोंट वी डू अ लाइफ ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि as I've always been telling, it is very very tough, it is very easy to talk, बोलना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत तकलीफ है। तो ये मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे हेमंत सर और परमिशन देते हैं तो मैं और बोल सकता हूं, मगर मैं भी देख रहा हूं कि मेरी टाइम बाजू में आ रही है। ठीक है सर, और जो आपका Jaishankar sir, now we'll start taking up question and answers. My last point, sir, with your kind permission, my last point. Please go ahead, sir. जो पैसा आपकी कल्चरल कमिटी ऐसे जो इसमें जो आ रहा है, you invested into SIPs, you invested into mutual funds. It will be for your children. आज काफी लोग क्या करते, काफी बिजनेसमैन क्या किए हैं, जो बिजनेस एस्टेब्लिश किए, आज वो लोग मेहनत किए हैं, उनके पोते मलाई खा रहे हैं। You look at the Marwadis as well as Gujaratis in the pharma business. I've been into the field for about 35 years, so I understand that. तो ऐसे अपने बच्चों के लिए क्या अपन सिक्योरिटी कर सकते हैं, यही मैं सोच रहा हूं। इसके साथ मैं अभी आई थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू व्हाटएवर स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाटएवर आई हैव यूज्ड। मैं आपकी सबकी धन्यवाद करता हूं। और अभी मैं हेमंत सर को रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे उन्होंने बोले थे कि क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं जयशंकर, तो मैं तैयार हूं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आई एम रेडी। ओवर टू यू हेमंत सर। Thank you, Mr. Jaishankar, for all your experience sharing. It was good. I hope people will relate that to themselves and maybe try to use your experience to their knowledge and benefit of the society. Before I invite our friends for question, आप ढेर सारा ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आपने ट्रेन में भी ट्रैवलिंग किया होगा, प्लेन में भी किया होगा, हाँ जी, बस में, टैक्सी वगैरह में। क्या आपने कभी राजधानी ट्रेन में ट्रैवल किया सर? हाँ जी।
आपको पता है कि राजधानी ट्रेन अंदाजन 5 बजे चलती है बॉम्बे से। हाँ जी, 5 बजे चलती है, करेक्ट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5 बजे चलती है और अगले दिन लगभग 9 बजे के आसपास ड्रॉप करती है। 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है सर। हाँ, वो लगभग मेरे ख्याल से 15 घंटे का एक ट्रिप हुआ ही है। करेक्ट। आप जब बैठते हो ट्रेन में तो सामने आपका ऑपोजिट हाँ पैसेंजर्स दिखते हैं। हाँ थोड़ा सा बातूनी हो गया अगर आप या फ्रेंडली मिजाज के होगे। हाँ, प्रश्न है फ्रेंडली मिजाज का होना। करेक्ट। अकड़ू है तो सामने वाला पर्सन डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये अकड़ू है, नालायक हाँ, टाइप का आदमी दिख रहा है, इसे क्या बात करना। सही इवन बात। अगर आप सामने लेडीज भी बैठी है या बच्चा भी बैठा है तो हाँ, आपके पास कुछ काम धाम है नहीं उस समय, ट्रेन में 15 घंटे निकालने, सामने वाले से करेक्ट। छोटी मोटी बातचीत कर लिया। करेक्ट। बातचीत करते करते और हाँ, शाम का डिनर, आई थिंक राजधानी में डिनर शायद 7:30-8 बजे सर्व कर देते हैं। 8 बजे के आसपास दे देते हैं। हाँ, वो भी फ्री डिनर है सर, वो पैसा नहीं फ्री लेते उस डिनर। चीज का। द क्राइटेरिया इज आप अच्छे दिखने चाहिए, आप करेक्ट। गुंडे ना दिखे, करेक्ट। सामने वाले से बातचीत करने की कला होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए कला, मतलब शुरुआत में करेक्ट। बोले किक स्टार्ट करते हैं। हाँ, और डिनर फ्री में मिलना चाहिए। सही बात है। अगर फ्री में डिनर मिला है तो हाँ, प्रश्न ये आता है कि आप अच्छे मिजाज के हो, डिनर फ्री में मिला है तो आप क्या डिनर रेफ्यूज करोगे? नहीं करेंगे। पेट खराब भी होगा तो भी छोटा मोटा खाएंगे ही खाएंगे। कुछ कुछ ना कुछ खा लेंगे, टोकन टोकन तो खा लेंगे क्योंकि मुफ्त में करेक्ट। मिला हुआ है। अब ये करेक्ट। ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने तो ट्रेन का टिकट का पैसा दिया हुआ है, करेक्ट। क्योंकि वो डिनर आप साथ में नहीं लेके जा सकते, मुफ्त है तो भी। करेक्ट। अभी मुझे ये बताइए सर जी, आपका एक्सपीरियंस है कि डिनर टाइम तक आपके ऑपोजिट पैसेंजर के साथ में आप कितना अच्छा रिलेशन बना सकते हो, बन जाता है, बाय जैसे डिफॉल्ट बन गाड़ी जाता है। छूट जैसे गाड़ी छूट रही है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे गाड़ी छूट जाती है, ठीक है, वह जब तक तो एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती है। अब गाड़ी यहां से निकली, बोरीवली पहुंची, बॉम्बे सेंट्रल से निकली गाड़ी, बोरीवली पहुंची, वहां तक भी ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, एक स्माइल होता है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। ठीक है। बोरीवली के बाद जब क्रॉस हो जाता है, जब उनके ये लिमिट निकल जाती है, तो हम नॉर्मली, मेरी स्टाइल ये है कि मैं उनको पूछता हूँ, सर आप दिल्ली के हैं या मुंबई के हैं सर? तो बोलता है कि मैं दिल्ली का हूं सर, मुंबई में बिजनेस के लिए आए थे सर। नहीं, मैं ओके सर, रिश्तेदार को तो मिलने आया। आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू लीड हाँ this issue into somewhere हाँ, relating to today's topic so that अपने जितने भी दोस्त ज्वाइन हैं आज यहाँ पे वो एक समझे इस चीज को और वह उस चीज को अपने सोसाइटी में अपनाने या लागू करने के लिए उनको एक आइडिया मिल जाए। तो करेक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि 2-3 घंटे में आप अपने सामने वाले पैसेंजर से इतने फ्रेंडली हो जाते हैं, हाँ, अपने टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज कर देते हैं, ध्यान रहे वो अनजान करेक्ट। आदमी है, वो आपने करेक्ट। उसको जिंदगी में कभी देखा नहीं। करेक्ट। और गाड़ी से उतरते उतरते सवेरे 8:30-9 बजे के आसपास आपने एक छोटा सा एक स्पेशल रिलेशनशिप बना लिया उसके साथ में, करेक्ट। ना चाहते हुए भी एक स्पेशल रिलेशनशिप बना, करेक्ट। क्योंकि आप छोटे से बातचीत में सक्षम हो, कैपेबल हो वगैरह, फ्री में डिनर भी करेक्ट। खाया एंड सही छोटी बात है। मोटी बातचीत हुआ। अभी नाउ कमिंग बैक सही टू बात। अपने गांव के घर में, गांव में घर है मेरा, वहाँ पे हाँ अगल बगल में नेबर्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, करेक्ट। है वहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं है, वहाँ पे कोई सीएचएस नहीं है, अपना अपना सबका करेक्ट। घर है, अपना अपना घर करेक्ट। में खा पी रहे हैं, अपना घर का रिपेयर कर रहे हैं, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, फलाना ढिकाना। मेरे घर के आगे सही बात। कचरा में रख रहा हूँ तो मेरे घर के आगे रख रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे के पास में अगर मैं जूता चप्पल का रैक रख रहा हूँ या साइकिल रख रहा हूँ तो मैं अपने घर हाँ, में कर रहा हूँ, वो सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। तो अगल बगल के नेबर भी फ्रेंडली है, क्योंकि मेरे घर के बाद सामने जूता चप्पल का रैक नहीं रखा हुआ है, शोर नहीं कर रहे हो हाँ आप, ऊपर से हाँ, लीकेज नहीं आ रहा है, अगल बगल से लीकेज नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। करेक्ट। तो आपके गांव के घरों में आपके जो नेबर्स है वो लगभग आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, वेरी ट्रू। है ना? बाई चांस दूध खत्म हो वेरी गया, ट्रू। चाय पानी खत्म हो गया, चले गए, कुर्सी, गेस्ट आ गई, 4 गेस्ट आ गए, चलो भाई कुर्सी बोरो करके लेके आ जाओ,
या हाँ। छोटा मोटा और जो नॉर्मली अपन सोचते हैं कि चाय पत्ती खत्म हो गई तो चलो भाई बगल के अम्मा के घर से ले आते हैं, वो भी उसको भी करेक्ट। अम्मा ही बोलते हैं, अपनी अम्मा को भी अम्मा बोलते हैं और उसको भी अपनी अम्मा बोलते हैं, करेक्ट। है ना। रिलेशन कुछ भी नहीं है लेकिन रिलेशन बन जाता है। करेक्ट। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, आपके अपने दोस्तों के लिए प्रश्न मैं उत्पन्न कर रहा हूँ ये कि क्या ये इस तरह के रिलेशन अपने सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या तो हमारे अनजान, अनपढ़ या गंवार मैनेजिंग कमेटी या दो चार जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, क्या हमको उनको ये अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में दो ही चार मेंबर्स होते हैं ये न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, अपने आप को दादागिरी से बात करने वाले, उनको ऐसा हाँ। लगता है कि लोग मेरी बातें सुने। कुछ मैनेजिंग कमेटी भी वैसे ही लोग होते हैं, ये दो चार जो मेंबर्स जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये टिपिकली पुराने मैनेजिंग कमेटी मेंबर होते हैं और उसके पुराने मैनेजिंग कमेटी, जिसको हम कह करेक्ट। सकते हैं कि पुराने पापी है। इनको पता है कुर्सी छूट गई लेकिन कुर्सी की चाहत बनी हुई है, तो क्या करें, दादागिरी करना है, रुबाब करना है, लोगों को बताना है कि मैं ये क्या हूँ। पॉलिटिक्स खेलना है। यस, सो लेट मी कंप्लीट सर। हम्म। तो ये दो चार मेंबर्स या जो अनपढ़ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है, मैं जानबूझ के अनपढ़ का वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि इन्होंने हकीकत में कभी बायलॉस पढ़ा नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना के मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन में वोट वगैरह बटोर लिया करेक्ट। और मैनेजिंग कमेटी में आ गए। अब लोगों को थोड़ी ना पता है कि आप कुछ काम करोगे या नहीं करोगे, उनको थोड़ी ना पता करेक्ट। है कि जबरदस्ती बाकी लोगों बाकी मेंबर्स के साथ में रुबाब झाड़ेंगे, है ना। और ये दो चार जो करेक्ट। मेंबर जो बता रहा हूं मैं जो ट्रबल क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, हाँ। वो जानबूझ के या मासूमियत के कारण गलत सलत कंप्लेंट फाइल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उल्टा सुल्टा लिखते रहते हैं, फितरत है आदमी की। करेक्ट। सोसाइटी से जानबूझ के अपने बाकी जो जिनसे वो हारे हुए होते हैं मैनेजिंग कमेटी से, उनसे आ, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, जबरदस्ती, कारण हो या ना हो प्रश्न पूछेंगे, करेक्ट। जबरदस्ती के डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे। करेक्ट। ये मेंबर्स फाइनेंशियली सक्षम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फितरत है कंजूसी की कि नहीं पैसे नहीं खर्चा करने मुझे मेंटेनेंस में। होटल में जाएंगे, 1500 रुपए का दारू पी लेंगे, लेकिन सोसाइटी को महीने पूरे महीने का 1500 रुपए मेंटेनेंस देने के लिए जान जलती है। प्रश्न करेक्ट। ये उठता है कि क्या ऐसे नॉन कैपेबल एमसी हैं जो मैनेजिंग कमेटी है, सारे लोग नहीं है लेकिन लेटस से 7 मैनेजिंग कमेटी में मैं ऐसा कहूंगा कि कम से कम 4 जन ऐसे हैं जो नॉन कैपेबल हैं। करेक्ट। और ये जो दो चार जो मेंबर हैं जो न्यूसेंस हाँ। क्रिएट करते हैं, जिनके करेक्ट। वजह से अल्टीमेटली अल्टीमेटली मतलब श्योर हो के वगैरह वगैरह कंप्लेंट्स, फॉल्स कंप्लेंट करके या करप्ट करके या पैसा खिला पिला के रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवा लेता है, हाँ। जिसके कारण अल्टीमेटली सोसाइटी में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो प्रश्न ये करेक्ट। होता है कि ऐसे नॉन कैपेबल एमसी हाँ। या ऐसे दो चार मेंबर्स को क्या हम लोग को अलाउ करना चाहिए सोसाइटी को मिसमैनेज करने के लिए, या हम लोगों को हैरास करने के लिए, या हम लोगों को हाइपर टेंशन देने के लिए। अब हम लोग ऐसे लोगों की बातों में सुन के आते हैं घर पे, चार बातें अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अम्मा से करते हैं, अपने बाबा अपने अब्बा से करते हैं, और ये एक टॉपिक बना रहता है घरों के अंदर। घरों के अंदर ये टॉपिक नहीं बनता है कि आज क्या पढ़ाई किया, आज खाना कैसे टेस्टी बना, अपन वो वेकेशन पे गए थे कैसे अपन ने एंजॉय किया, अपन ने गोविंदा की मूवी देखी कैसे उसने डांस किया। ये टॉपिक नहीं करना है, ये टॉपिक कर लेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारा हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगा, हमारा डायबिटीज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अनपढ़ मैनेजिंग कमेटी है दो चार लोग, और ये सोसाइटी के दो चार जनरल मेंबर्स है जो ट्रबल मेकर्स हैं, ट्रबल शूटर्स नहीं है वो, ट्रबल मेकर्स हैं, ट्रबल मेकर है। मेकर्स हैं, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है।
क्योंकि आप देखेंगे अगर इतिहास एक सोसाइटी का 15 साल का, तो आप ये देखेंगे कि अरे 5-6 मेंबर ही हैं जो परेशान करते रहते एक दूसरे को। बाकी आप और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे सोसाइटी में 1500 रुपए का मेंटेनेंस है, ये ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरे को मेरे परिवार के साथ में शांति से जीने दो, मेरे को मेरे करेक्ट। शांति से मेरा काम धंधा करने दो। आपको 2000 चाहिए, आप 2000 ले लो। मेरे पास कैपेसिटी होनी चाहिए हाउसिंग सोसाइटी में रहने के लिए और मेंटेनेंस देने के लिए। वो अगर मैनेजिंग कमेटी 200-500 रुपए खा रहा है, हाँ। तो उसे शुरू में खाने दो, बाद में आप अपना उसके बारे में कंप्लेंट करना शुरू करो। और नहीं करना चाहते हो तो घर में बैठो आराम से, कोल्ड कॉफी पियो, कोल्ड बियर पियो, वोडका पियो, लस्सी पियो, वगैरह वगैरह। पर क्या ये हम लोगों का फितरत होनी चाहिए कि और कोई हमारे घर में आग लगाए, और कोई मेरे मन में, मेरे दिमाग में आग लगाए? क्या हमारी ये फितरत होनी चाहिए? एक सेकेंड सर। हाँ सर। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर आज हम चर्चा करेंगे। हम लोग हाँ जी। रिपीटेडली चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको सावित्री और सत्यवान की कहानी पता हो तो, वो हमारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर थे। सावित्री का पति सत्यवान की मौत हो गई जवानी में ही। यमदूत आए उसे लेने के लिए। सावित्री उसके पीछे पड़ी रही, मेरे पति की जान वापस करो, मुझे नहीं पता, ऐसा करो वैसा करो, हर चीज का जवाब मांगते रहे, पीछे पड़ी रही। यहाँ पे शब्द है रिपीटेडली, पीछे पड़ी रही। और उन्होंने लॉर्ड यमदूत को फोर्स किया कि वो सत्यवान के प्राण वापस कर दे। जैसे हमें हार्ट अटैक आया, हमने पंप किया जोर जोर से, और हमारी किस्मत रही, नसीब रहा, तो हमारे प्राण वापस आ जाते हैं। तो अब ये आज का एक प्रश्न होता है कि क्या हम लोग को ये प्रैक्टिस, रिपीटेड कोशिश करने वाली प्रैक्टिस, आपने इतने ढेर सारे आइडिया दिए कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो, प्रश्न ये उठता है कि एक बार करने से क्या ये अचीव हो सकता है, या हम लोग वो रिपीटेडली अचीव करते हैं? हम वो राजधानी में बैठे, हमने क्या तुरंत उससे दोस्ती करके फोन का आदान प्रदान कर लिया, या खुद थोड़ी देर बात किया, मैच्योर होने दिया टॉक्स को, और फिर हमने उस चीज के लिए प्रयत्न किया? तो क्या सोसाइटी में हम ये प्रयत्न कर सकते हैं? अब हम अपने दोस्तों का प्रश्न उत्तर का दौर शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न उत्तर होगा, उसका टॉपिक का विषय है सोसाइटी डिस्प्यूट्स। सोसाइटी में क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशंस क्या है। आपको अगर सॉल्यूशन है तो आप बताइए, अगर स्पीकर्स आपके पास सॉल्यूशन है तो स्पीकर्स आप बताएंगे, जो भी है। अगर पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, फ्रेंड्स जो भी हैं आज के वेबिनार में, उनके पास में कोई सॉल्यूशन है तो वो भी बता सकते हैं। टॉपिक को छोड़ के कोई प्रश्न ना पूछे। जो भी फ्रेंड्स को प्रश्न पूछना है, आपके स्क्रीन में एक हैंड सिंबल है, हाथ का पंजा का सिंबल है, आप उसे प्रेस कर दें, and we will take up your questions in sequence. We are allowing only one question per person. While asking your question, it is compulsory to switch on your video. अगर आप वीडियो स्विच ऑन नहीं कर पा रहे तो आप प्रश्न मत पूछिए। This webinar does not provide any type of consultation or solution to your personal problems. Today's knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any liability or responsibility or whatsoever and whichsoever to chshelpforum.com. So now we will start our question answer session. First question is by Mr. Irshad Sheikh. Hi sir, thanks for allowing me. सर मेरा
क्वेश्चन ये है कि दैट सिंस कल्चरल कमेटी हमारी सोसाइटी में है एंड हम लोग फेस्टिवल फंड हर फ्लैट से एक 100 रुपीज कलेक्ट करते हैं और मेरे सोसाइटी में आने से पहले ये चलता है और उसमें सारे फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें दो था सर कि दैट पहला तो कल्चरल कमेटी अभी ये लोग बोलते हैं कि कमेटी जो डिसाइड करेगी हम लोग सिर्फ वही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरा ये है कि जो कल्चरल कमेटी का हमारा जो फंड जमा होता है ना, दे एक्सीड दिस फंड। सो ये दोनों केस में सर क्या करना चाहिए? अभी कैसा है कि एक तो कल्चरल जो फंड जो फेस्टिवल फंड से 100 रुपीज पर मंथ पर फ्लैट जो लेते हैं, तो वो अगर हम लोगों को विड्रॉल करना है, बिकॉज इफ यू आर नॉट अलाउिंग अस टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल, तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग दिस फेस्टिवल फंड? वेरी ट्रू। फर्स्ट ये एंड सेकंड ये है कि आप वो फंड के अंदर, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी रिलीजन, बट वो लोग पंडित की सैलरी भी वो फेस्टिवल फंड से एवरी मंथ में देते, तो बजट कैसे बचेगा उसके अंदर? जो डिसाइडेड है और वो लोग ये जो 5000 पंडित का जो सैलरी है, ये लोग जो बंदे हैं यहाँ के वो लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि पंडित सैलरी 60,000 एवरी ईयर। तो सर ये कहाँ तक ठीक है? आप सोसाइटी का फंड जो है कल्चरल काम में यूज कर रहे हैं। देखिए, अब मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ सर, इरशाद भाई, अभी मैं बात कर सकता हूँ? ये सर बोले, मैं म्यूट हो रहा हूँ। बात ये है इरशाद भाई कि जैसे आपने जो सवाल पूछा, ये एक जात का, वी आर लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन प्लेस। यहां पे अगर मैं गणपति मनाता हूं, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि एक इस्लाम की जो रमजान या बकरीद जो सबसे बड़ी त्योहार जो है, उसको भी मनाया जाना चाहिए। एक ईसाई जो है, क्रिश्चियन जो है, उसका भी जो फंक्शन जो है, क्रिसमस हो गए या न्यू ईयर तो हर सोसाइटी मनाती है, ठीक है, क्रिसमस हो गए वो मनाना है, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम पंडित के लिए महीने का 5000 दे रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए सर, कितने फेस्टिवल एक सोसाइटी में सेलिब्रेट करते हैं? और ये पैसे जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो कल्चरल कमिटी की जो अमाउंट जो है, कल्चरल कमिटी जो लेके रखती है, कल्चरल कमिटी मतलब कोई उधर बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मैनेजिंग कमिटी इज समथिंग डिफरेंट, हु टेक्स केयर ऑफ डेली सोसाइटी मैटर्स। दिस इज अ सेपरेट फोरम विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये मैं क्या बोल रहा हूं कि आप एक वेलफेयर के लिए ये त्योहार जो मनाना है, तो आप लोग साथ में मिलकर बोलना चाहिए, हर इसका त्योहार मनाना चाहिए। एक गेट टुगेदर बनाओ, त्योहार ही मत बनाओ, चलो डोंट टेक रिलीजन इनटू प्लेस, एक गेट टुगेदर करते हैं। वो गेट टुगेदर के लिए वो एक कारण बन जाता है, त्योहार, गणपति एक त्योहार बन जाता है, ठीक है। तो क्यों ना रमजान मनाए, क्यों ना क्रिसमस मनाए? क्वेश्चन यही है कि दैट वी डू पार्टिसिपेट इन एवरी उसमें, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी डू पार्टिसिपेट इन एवरी फेस्टिवल। आप म्यूट हो गए सर। हाँ, इफ यू आर नॉट अलाउिंग टू पार्टिसिपेट और ये करने के लिए और सेलिब्रेट नहीं करना, तो सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू विड्रॉल द फेस्टिवल फंड? इफ आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग और इफ यू आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट, सर व्हाट इज द मोड ऑफ? इरशाद भाई, हम एक जगह में हैं, हमको सबके साथ चलना है, ठीक है। हम पार्टिसिपेट करेंगे करके नहीं बोलना चाहिए, उल्टा आपको ये बोलना चाहिए, भाई हमारी ईद क्यों नहीं मना रहे हो? आपके साथ में क्रिश्चियन होगा। एक्चुअल कैसा है ना, ये डिस्प्यूट में Mr. चले Sheikh, जाते हैं। please do not interrupt the speaker. You have asked your question. That's it. Please mute yourself. The speaker has answered your फोन question. कीजिए, मैं आपको इसके सोल्यूशन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जन की क्वेश्चंस जो है मैं आपको आराम से समझाता हूँ। आप, मेरी नंबर है इस सेल फोरम में, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा। Our next question is by Mr. Noah Matthew. Mr. Noah Matthew. Thank you, sir. Please go ahead, Mr. Matthew. We are not able to hear you, Mr. Matthew. Please come back after 2 minutes. Next question is by Mr. Deep Chaudhary. Hello. Good evening, sir.
Mr. Deep Chaudhary, please go ahead. Mr. Deep Chaudhary. Can you please on your video and unmute? Mr. Deep Chaudhary. We can't hear you. Please adjust your microphone and then come back. Next question is by Mr. Mohammed Afzal. या सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपना जयशंकर जी को कि उन्होंने एक एक जो बात कही है मैं उस पे 100% सहमति रखता हूं। इनफैक्ट पिछले 40 साल से मैं यही चीज़ को प्रोपेगेट कर रहा हूं कि सोसाइटी में एक तरफ मेंबर है और एक तरफ मैनेजिंग कमेटी है। अब क्या हो जाता है, मेंबर बोलो या मैनेजिंग कमेटी बोलो, उनको थोड़ी सी जानकारी आरटीआई के बारे में है या उनको थोड़ी सी जानकारी राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के बारे में है या कोई भी लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत आक्रमण रूप अपना देते हैं। सो द मेन थिंग इज हाउ टू बिहेव विथ ईच अदर। वन हैज टू चेक, कीप अ चेक ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज। एक तो बॉडी लैंग्वेज पे उनको चेक करना है, उनको अपनी ज़बान पे चेक करना है और उनका जो सब्जेक्ट है वो मेरिट्स पे होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर मैनेजिंग कमेटी के पास अप्रोच आप करते हैं और आपको कोई चीज़ चाहिए तो साधारण रूप पे आप अगर ये समझ लीजिए कि दो ही तरीके हैं, या तो आप प्यार से ठुड्डी में हाथ रख के आप मांग सकते हैं या आप थप्पड़ मार के मांग सकते हैं। तो अगर आप उनके जगह में हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे समस्या ये होती है कि आपको ये देखना है कि एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास फुल है, आपको ये देखना है कि आधा ग्लास फुल है, बाकी का जो आधा एम्प्टी है उसको हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फुल करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है, ईगो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैनेजिंग कमेटी बोलो या मेंबर बोलो, अगर वो अपने ईगो को साइड में रख दें तो ये जो डेप्यूटी रजिस्टर के यहाँ जो कंप्लेंट्स फाइल होती है 99% ये बंद हो जाएगी। और मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि जयशंकर जी ने बताया, जस्ट अ मोमेंट, सारे चीज़ें समअप होके जैसे इसी पे आती है कि यू कम विथ नथिंग एंड यू फाइट फॉर एवरीथिंग, इन द एंड यू लीव एवरीथिंग एंड गो विथ नथिंग, देन व्हाई पीपल हर्ट ईच अदर। तो सबकी परिभाषा अगर प्यार को लेके और समझदारी को अगर लेके लोग चलें तो मेरे ख्याल से 99.9% जो सोसाइटीज़ में जो डिस्प्यूट्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे एंड एक दूसरे को दोनों तरफ से लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। That's what I wanted to say. Okay. Next question is by Mr. Noha Matthew. Are you ready, sir? Hello, can you hear me now? Yes, please go ahead. The issue, Mr. Jaishankar has elaborated, said everything properly. But the person who is going to complain against the managing committee, is he a nuisance to the society when he is trying to bring it up, the right bylaws to be implemented? So is it is a nuisance value? See, again, sir, if you permit me to answer your question, as you rightly said, everything cannot be a nuisance value. But at the same time, the person who's bringing it to the managing committee, during my entire statement, I've been saying it, you bring it in such a way, you be very firm, you be very polite. Yes, I agree that there could be high-handedness from the opposite side. Then you get on to all this. But if you can have a catalyst with you, which say, yaar, ye information jara nikal ke dena, yaar, there'll be somebody in the society with whom you'll have good relations, and that person could also have good relations with him.
अरे यार ये चीज ऐसे चल रहा है यार, जरा देख के बोलना यार, क्या करना है. If you do that, you will avoid a conflict. My basic theme of talking today is to avoid conflicts and to avoid misunderstandings, because the other person then go adds the managing committee person be sitting in that chair, adds mirchi and masala to it, and blow and makes a mountain out of a mole. Ultimately, the people there who want to listen to him, like as I said, if my father-in-law is the secretary of the society, okay, I will be least bothered. So you will have, see, every society will have certain like-minded people. So you approach them on a positive note. If they then don't behave, then your nuisance value is justified. If you are bringing something to the table, talking about some good information, okay, that this has to be applied like this, why don't we do it across? You can put it forward in the AGM. You can say it even there. You tell it there, you tell it in front of the public. First you tell them, they don't listen to you, they will say, I will do whatever I want. I'm coming to the other side. They Okay, will sir. also We'll tell take you up, that. Sir, we have got limited time. So we'll take up next question by Mr. Deep Chaudhary. Mr. Deep Chaudhary. Sir, please unmute your microphone and please use your video. I'm not able to hear you at all, sir. Okay, next question is by Latifa Sheikh. Latifa Sheikh. Next question is by Mr. Rakesh Malhotra. Hello. Good evening. You can hear me? Yeah. एक्चुअली के क्वेश्चंस आई डोंट नो ये इसके रिलेटेड है क्या कि मेरे सोसाइटी में टेरेस शेड का काम हो रहा है, नियर अबाउट 14 lakhs का है, और उसमें जीएसटी भरना है क्या नहीं भरना है. तो मैंने सजेशन दिया है कि जीएसटी भर दो, बिकॉज ऑफ एक तो इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जीएसटी भरने से तो इंडिया को ही प्रॉब्लम है. पर वो बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जो बिल हम लोग को दे रहे हो जो कॉन्ट्रैक्टर, वो जीएसटी के अंदर उनका नहीं आ रहा है, तो अपने लिए अच्छा ही है. तो इसके बारे में एक सॉल्यूशन चाहता हूँ मैं कि इज इट ओके इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा इफ मटेरियल इज नॉट बैड, तो और ये डिस्ट्रीब्यूट न हो बस. Rakesh ji, with due respects to you, the question is not related to today's topic. Exactly. Having said that, sir, my humble request to you would be, you can call up Hemant sir and you can call me up at any given point of time and I will definitely answer your question. Okay. Okay, sir. Thanks. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Hemant sir, you need to unmute. Okay, next question is by Latifa Sheikh. Latifa Sheikh. Good evening, madam. Please unmute and please use the video. Yeah, it's on. Can you see me, sir? Yeah, I can hear you now. Okay. So you were talking about the festival celebration, and if it is a Cosmo society, then you are supposed to celebrate all the festivals, right? Correct. Okay. So now ours is a Cosmo, and I remember very well 4 years back when the society was formed, they had planned for the. Can you be a bit more festival- loud, man? Can you be a bit more loud, or can you go close to the microphone? 1 second. Can you hear me now clearly? Not very much, but okay, it's better.
Now, sir? Now it's perfect. Okay. Ours is a Cosmos Society, and 4 years back the society was formed. Okay. Now the festival group had organized for some festival which will be celebrated throughout the year. So in that, no Muslim or Christian festivals were included. So some of the no, in our place we don't have much of Muslims or Christians. Hardly 2-3 are there. So some of them took the objection that our festival is not included, so we are not going to contribute. So that time, my sister also supported that person, that as our festivals are not included, we are not going to contribute in them. In that particular contribution. So the society members went to the police station to lodge a complaint about us, that they are denying to pay to contribute in the festivals. And the other thing is, sir, recently, initially I was not staying over here. So past 2 years I'm staying here, and recently we have contributed 500 rupees from each house for the festivals, and we let it means the Catholics and the Muslims who stay here, we just ignored that whichever festival you want to celebrate, you celebrate. So what happened, that whatever contribution was collected, now whatever festivals you have planned, then you must have made a budget according to that particular amount which was collected. So within just 2 festivals, they utilize the whole amount, and then later on again then the treasurer was changed, and the treasurer was like, I will not give a single penny for any other festival. So on Holi again the contribution was removed. So when I went to that particular person, that sir, around Ganesh Chaturthi you have collected 500. Latifa madam, you'll have to shorten up your question. Okay, We will not take so, lengthy questions, please. So basically, if I understand, you're telling me that the festivals of other religions is not celebrated and only Hindu religion is celebrated. Sir, celebration is a far away thing of other religion. They don't even wish us in a WhatsApp group, not even the chairman or the secretary, not one single message from them, you know. This is exactly what I was saying. No. I am not talking about a festival being celebrated. I have been talking about the welfare. Like if you send in a good wishes of a birthday. Okay. Okay, why you can also bell the cat. I said what cannot be cured should be endured. So you start off on your welfare group. There should be a welfare group in your society. You just put in a message there. Many, many happy returns of the day. Sir, I'm not the actual owner. So they always raise this point that you're not That's the what owner. I said. Even a tenant, please understand, madam, that a tenant has got no right to vote or attend the AGM. He is the caretaker of the society. He is the caretaker of that particular flat. Okay, he can also be treated as a nominal member. Okay. And So when you're paying non-occupancy, that is why Hemant sir has always been stressing that please also make it an effort to go through the bylaws. You are paying non-occupancy charges of 150 rupees. That ends the story. Sir, I'm not tenant. The flat is registered on my younger sister's name, and I'm the elder one. It is the family. Sir, There is also something called as a family. So the problem is that they don't, I know the bylaws, but they don't know the bylaws. The problem is that. That's not your problem. So my question was that when I had asked them that give me the account of the money which you have spent on the festival, so I got a reply that no one is asking about the account, only you are the person who is asking. And this is normal. This is normal. Every society does this. Okay. But you have got to say then at that time when you collected money from me, with what face did you come and collect money from me? I am a person who's a clear businessman who believes in proper accounts. Okay. Now here it is not a nuisance value. You're asking for your right. Yes, why are you foregoing your right? Sir, Jai Shankar sir will take up the next question. Okay. Next question is by Nakshatra Ozone. Nakshatra Ozone. हाँ सर नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ हेमंत जी नमस्ते। हेमंत जी नमस्ते। मेरा ये सवाल था कि नया सोसाइटी है, 2 साल हुआ है
यहाँ पे ऐसा होता है कि अपना सोसाइटी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल्चरल कमेटी करके एक उत्सव मंडल की स्थापना किया है। तो दो जगह पे पैरेलल क्या हो रहा है कि पावर हाउस बनते जा रहा है। पावर हाउस बोले तो किसी का मोनोपोली क्रिएट करना, हमें सोसाइटी में नहीं आना है, एक्चुअल में सोसाइटी चलाना भी नहीं है, लेकिन बाहर रहकर एक कल्चरल कमेटी के नाम पे तो लोगों को झुंड एकत्रित करके सोसाइटी को पैरेलल एक मोनोपोली क्रिएशन करके पावर हाउस बनाना और उसको चैलेंज करना। और व्यक्तिगत जैसे ईगो शब्द आया ना शुरुआत से अभी तक बहुत मान्यवर के इसमें आया हर टाइम में, तो वो ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है हमारी ओर से, तो हम पूरा प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें एक पूछना था इसे कि जैसे कि साल भर में देखो 2-3 त्योहार ही है जो कि बहुसंख्यक समाज का है, हम करते हैं, करना भी चाहिए। जैसे सार्वजनिक गणेश उत्सव है, सार्वजनिक नवरात्र उत्सव है, ठीक है। तो उसमें तो सब लोग एकत्रित आते हैं, लेकिन ये जो फंडिंग का विषय है ना, तो उसमें थोड़ा पूछना था कि ऐसे सोसाइटी अकाउंट से हटकर हमने इस बार ऐसे किया था कि जीपे पे पर्सनल कंट्रीब्यूशन करके तो हमने खर्चा किया था, लेकिन ऐसे कुछ उत्सव मंडल ने तो ऐसा जो कल्चरल कमेटी का ऐसे कुछ नाम पे अकाउंट खुलवा के ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? थोड़ा सा सुझाव चाहिए था। क्यों नहीं? जब आपकी सोसाइटी फॉर्म होने से पहले, आपकी सोसाइटी फॉर्म होने से पहले आपको जब बिल्डर ने दिया था तो उसने ऐसे दिया था, फॉर एग्जाम्पल सुयाश हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड प्रपोज्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं आपकी सोसाइटी के नाम से सुयाश कल्चरल कमेटी, सुयाश वेलफेयर सोसाइटी, कल्चरल एंड वो एजुकेशन पैसा और आपकी सोसाइटी का जो डे टू डे जो है उसको मिक्स नहीं करना। अगर वो लोग ने बैंक ऑफ इंडिया में रखा है तो आप कैनरा बैंक पे रखिए। Okay, sir. We'll take up next question by Mr. हाँ जी, बस we will take up next question by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis Menezes. Okay, next question is by Mr. Nilesh Purohit. Am I audible? yes, good evening to you. Good evening. मेरा एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारे यहाँ पे टेरेस पे शेड लगाने का काम लिया हुआ है, बट किसी को कोटेशन भेजा नहीं है, एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है और वेदर टेंडर्स वेर इनवाइटेड, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बट जस्ट बिल्स प्रोवाइड किए गए। दिस इज द एडवांस बिल टुवर्ड्स शेड। तो लोगों ने ये पूछा भी कि काइंडली टेल अस मोर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टेंडर, बट नो रिस्पांस हैज बीन गिवन ऑन व्हाट्सएप। तो ये आपने सर मैं इधर आपको थोड़ा सा काटना चाहता हूं सर, क्योंकि काफी लोग हैं लाइन पे, हेमंत जी बता रहे हैं मुझे ये बात सर, ये पॉइंट को रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, सब लोग एकत्र रह के कैसे हम पैसा जमा कर सकते हैं और कैसे हम लोग साथ में मिलके खुशी के साथ जी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपका है सर, ये आप पर्सनली मुझे कभी भी फोन कर सकते हो या हेमंत सर को फोन कर सकते हो, वो बताएंगे। क्योंकि ये फोरम जो है ना सर, बुरा मत मानना, ये फोरम जो है ना सर, ये काफी लोग हैं और इस टॉपिक, हेमंत सर ने यही बात बताया कि इस टॉपिक के रिलेटेड हम बात करेंगे, हम आपको इसकी जवाब देंगे, हम ना नहीं बोल रहे। आप पर्सनली मुझे फोन कीजिए नीलेश जी, और हम आपको जरूर देंगे इसकी जवाब। श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का टाइम समाप्त हो गया है वेबिनार का। मैं श्री जयशंकर नटराजन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपना नॉलेज शेयर किया, अपने दोस्तों के प्रश्नोत्तर के जवाब भी दिए, सुझाव भी दिए, एंड उनका once again thank you for everything they have done. Now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you all friends. Till Thank you sir. Thank you very